Now, I had already finished few chapters of modern physics. I had already finished Bohr model of atom. I had finished the photoelectric effect. I had finished discovery of electron, and I had finished X-rays. Beside that, beside that, the nucleus chapter हमने काफी पहले कंप्लीट कर लिया है. Now let's continue this modern physics and finish it in this week. हमारा मॉडर्न फिजिक्स का एक आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, एंड दैट इज सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स. हम इस चैप्टर को भी इस सप्ताह पूरा कंप्लीट कर देंगे. इनफैक्ट इन द मिड मैंने केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर इसीलिए कराया था बिकॉज दैट वुड बी अ नाइस कंटिन्यूएशन. सॉलिड स्टेट में हमने अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को समझा और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी समझा. इन दिस चैप्टर सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स will study with the electrical properties of any crystalline or amorphous solid. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कैसा बिहेवियर होता है, इस बात को हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में. और हमारा खास एम्फोसिस होएगा सेमीकंडक्टर्स. इनफैक्ट दैट इज अ रिवॉल्यूशन इन मॉडर्न फिजिक्स. आज के समय जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, मॉडर्न गैजेट्स हैं, ऑल दोस आर कंस्ट्रक्टेड विद द यूसेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स अ वास्ट टॉपिक. आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इनफैक्ट इन्हीं चीजों को हम बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. अभी 12th लेवल पर आईआईटी जेई और एआईट्रिपल लेवल पर इसका बिल्कुल बेसिक्स इंक्लूडेड है और वही बेसिक्स हम इस चैप्टर में समझेंगे. देखिए, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एनी crystalline solid may be categorized in 3 categories: conductors, insulators, and semiconductors. The first category of a solid, depending on its electrical properties, is conductor. These are those solids which readily conduct electricity when electric field is applied across the conductor, when a potential difference is applied across the crystalline solid. यदि हम सॉलिड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, यदि हम सॉलिड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो यह सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगते हैं और सच सॉलिड्स वी कॉल देम कंडक्टर. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, सोडियम, सच सब्सटेंस आर टर्म्ड एज कंडक्टर्स. The another category of solid depending on electrical property are insulators. They does not conduct electricity when potential difference is applied across, when electric field is applied across. आप इनके अक्रॉस
साधारण पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ या साधारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो यह कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड और क्वार्ट्स, डायमंड क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, they does not conduct electricity. In fact, they would need very high potential difference. They would need very high electric field. Only in that condition they may conduct anyway. Their conductivity would be very poor. Their conductivity is in the range of 10 to the power minus 24 times the conductivity of conductors. Their conductivity is 10 to the power minus 24 times. Means it's very less. It's negligible conductivity. I will say their conductivity is 10 to the power minus 24 times less than conductors. That's why we used to say they are poor conductors. They does not conduct any electricity. In between this conductors and insulators, we have got a special category of crystals. We call them semiconductors. The crystal of our interest, the crystal of our concern, semiconductors. About semiconductors, we are calling them semiconductors because they are partially conductor and partially insulator. इनकी conductivity conductors से काफी कम है. Their conductivity is 10 to the power minus 11 times the conductivity of conductors. Their conductivity is 10 to the power minus 11 times that of conductors. And their conductivity is 10 to the power 13 times higher or greater as compared to insulators, and 10 to the power 13 times greater than that of insulators. इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से तो 10 टू द पावर माइनस 11 टाइम्स कम है. जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से 10 टू द पावर माइनस 11 टाइम्स कम हो जाए उसे हम कंडक्टर तो कह नहीं सकते, मगर इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर के मुकाबले 10 टू द पावर 13 टाइम्स हायर भी है. दैट्स व्हाई they can't be called insulators as well. न तो हम इन्हें कंडक्टर्स कह पाएंगे, न ही हम इन्हें इंसुलेटर्स कह पाएंगे. They are termed as semiconductors. The element of fourth A group, element of fourth A group that is silicon and germanium. Are such crystals. Pure silicon crystal, pure germanium crystal या impure silicon crystals या impure germanium crystals are of this category. They are termed as semiconductors. इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़नी है.
हमें इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, हमें इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी कंडक्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी कैसे कितनी होती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे घटाई जा सकती है, इनसे हम किस तरह के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, किस तरह के डिवाइसेस बना सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक उनके किस तरह के उपयोग हो सकते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के द्वारा आज के समय कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल दोज थिंग्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं आसपास, ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर constructed with the use of such semiconductors only. In fact, this semiconductors had replaced all the age old जो पहले इलेक्ट्रिकल हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती थी, उन सभी डिवाइसेस को, उन सभी गैजेट्स को हटा के आज के समय यही चीज सबसे अधिक इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम सबसे पहले एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। एक काफी इंपॉर्टेंट, सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट समझने के लिए यह टर्म हमेशा अपीयर होता है, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। देखिए, अभी तक हम एनर्जी लेवल जानते हैं। जैसे यदि हम बात करें सोडियम एटम की, अ सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, इन दैट Z इज इक्वल टू 11। फॉर सोडियम atomic number is 11, which imply that in a nucleus of sodium atom will have 11 protons, and outside the nuclei will have 11 electrons revolving around the nuclei. दो इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे, दो इलेक्ट्रॉन 2s में होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन 2p में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 2p में होते हैं, एंड वी हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन 3s suborbit. If I draw this situation, I will say this is a nuclei having 11 protons. This is first orbit in which we'll be having 2 electrons. This is second orbit, यह सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट्स होते हैं, 2s 2p, 2s जो पूरी तरह से सर्कुलर है, और 2p जो इस तरह से स्लाइट एलिप्टिकल है। दिस इज सेकेंड सब ऑर्बिट। 2s सब ऑर्बिट में तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s सब ऑर्बिट मैंने बिल्कुल गोल सर्कुलर बना रखा है, और 2p सब ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। And then lastly we have third orbit, 3s orbit.
This is third orbit in which we have got one electron. This is situation of a sodium atom. If we discuss about an isolated gaseous sodium atom, if this is an isolated gaseous sodium atom, इस आइसोलेटेड गैसियस सोडियम एटम में हम कहते हैं यह सेकेंड ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी मिनिमम होती है, न्यूक्लियई के सबसे करीब है, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड वी ऑलवेज ड्रॉ इट इन दिस मैनर. दिस इज 1s सब ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम. इसकी सबसे कम एनर्जी है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ 1s ऑर्बिट. क्योंकि यह न्यूक्लियस से सबसे करीब है, सबसे कम एनर्जी है. यदि हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट की, इसमें 2s सब ऑर्बिट और 2p सब ऑर्बिट, हम कहते हैं इसकी एनर्जी 1s से ज्यादा होती है. 2s सब ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास अ टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1s से ज्यादा होगी. 2s कहीं इधर होएगा और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, 2p की और भी ज्यादा होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 2s. और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6. जबकि यह जो 3s सब ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियई से सबसे दूर है, इसमें इसकी एनर्जी 1s से ज्यादा, 2s से ज्यादा, 2p से ज्यादा कहीं इधर होगी 3s. और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. ऑल्दो सोडियम एटम में 3p और 3d सब ऑर्बिट है, यदि उनमें इलेक्ट्रॉन होते तो उनकी एनर्जी कहीं इधर होती. बट दिस सब ऑर्बिट्स आर वैकेंट इन केस ऑफ सोडियम. We used to say this is the energy level diagram of an isolated gaseous sodium atom. एक आइसोलेटेड गैसियस सोडियम एटम में यह एनर्जी लेवल डायग्राम. इट सिंपली मींस कि 1s में एक फिक्स एनर्जी है, 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक फिक्स एनर्जी है और it's at this level. When you compare it with another suborbit, it have got minimum energy. Minimum energy इसलिए क्योंकि यह न्यूक्लियई के काफी करीब है. हम कहते हैं जो ऑर्बिट न्यूक्लियई के जितना करीब होता है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई से उतना ही टाइटली बंधे हुए होते हैं, उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, उनकी आजादी उतनी ही कम होती है. वह फ्रीली कहीं भी नहीं आ जा सकते जिनकी एनर्जी जितनी कम है, न्यूक्लियई के जो जितना करीब है.
न्यूक्लियस जितना अधिक बंधा हुआ है उसकी आजादी उतनी ही कम है। इसी तरह से 2s सब ऑर्बिट का यह एनर्जी लेवल, 2p, then 3s, 3p, 3d. If we have got 1 mole of gaseous sodium atom, isolated gaseous sodium atom, separated from each other by infinity. Now just imagine this situation. हमारे पास 1 मोल gaseous sodium atom है, means Avogadro's number of gaseous sodium atom. If we have 1 mole of isolated gaseous sodium atoms, 1 मोल का मतलब होएगा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। और ये सारे सोडियम एटम एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। एक सोडियम एटम का दूसरे सोडियम एटम के साथ किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं है, गैस फेज में है, वेपर फेज में है। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं वहां पर 1s सब ऑर्बिट में कुल मिलाकर 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उन सभी 2n इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल यह फिक्स होगा। 2s ऑर्बिट में इस एनर्जी वाले कुल मिलाकर यह भी 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n एटम्स हमने लिए हैं। 2p सब ऑर्बिट में कुल मिला के इस एनर्जी वाले 6n इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। This would be the situation if we have got 1 mole of isolated sodium gaseous atom. अब यह सोडियम वेपर्स, सोडियम के गैस एटम्स सारे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। एक लैटिस क्रिस्टल में एक एक लैटिस पॉइंट पर जाकर बैठ जाते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। जनरली हम कहते हैं सोडियम क्रिस्टल एग्जिस्ट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। जो सोडियम क्रिस्टल होता है वह बीसीसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। मतलब सोडियम के एटम जब एक दूसरे के करीब आके क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं तो वहां बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनता है जनरली। इस तरह से यह सभी 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम करीब आकर एक क्रिस्टल बना रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, वह क्रिस्टल का वजन होगा 23 ग्राम्स। एक 23 ग्राम्स का हम सोडियम क्रिस्टल बनाते हैं। अब क्या होगा? अभी तक एक सोडियम एटम का दूसरे सोडियम एटम के साथ कोई संबंध नहीं था, मगर जब यह सोडियम एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे, तो इस तरह के एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स revolving in the orbit start interacting with electron of another atom. ये जो 3s सब ऑर्बिट में यह जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यह घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब तक आइसोलेटेड गैसियस एटम था तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से घूम रहा था, इसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। मगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरैक्ट करने लगेगा, उससे कभी कभी टकराने लगेगा, उसके साथ में कभी कभी एनर्जी एक्सचेंज करने लगेगा। कभी यह कुछ एनर्जी देगा, कभी यह कुछ एनर्जी लेगा।
इस तरह से यह जो 3s ऑर्बिट में यह जो एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम लेने पर n इलेक्ट्रॉन्स जो आपको इस लेवल पर दिख रहे हैं, इनकी अब एनर्जी एक फिक्स या एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं रह जाएगी। अब इनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में पाई जाएगी। कभी इसने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है, और कभी इसने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले ली तो इसकी एनर्जी बढ़ भी सकती है। इस तरह से अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स इतनी रहने के बजाय हल्की सी कम ज्यादा हो सकती है। सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, यह भी दूसरे एटम के साथ में, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में किसी ना किसी तरह का इंटरैक्शन करने लगेंगे। उस इंटरैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी फिक्स रहने के बजाय अब कुछ कम ज्यादा होने लगेगी। इसी तरह से 1s ऑर्बिट का यह इलेक्ट्रॉन भी, ऑल्दो हम एक बात पक्का यह कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरैक्शन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन ही रखेगा दूसरे एटम के साथ में, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी का एक्सचेंज आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला ही करेगा। इसलिए मैक्सिमम एनर्जी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस 3s सब ऑर्बिट में इसी इलेक्ट्रॉन का हो सकेगा, जबकि जो इनरमोस्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का के यह दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ सबसे कम इंटरैक्शन रखेंगे। सबसे कम इंटरैक्शन रखने की वजह से यह सबसे कम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। ऑल्दो थोड़ी बहुत एनर्जी यह भी एक्सचेंज करेंगे, मगर इनके द्वारा एनर्जी एक्सचेंज सबसे कम होगी। फिर भी हम कहेंगे कि अब इनकी एक फिक्स एनर्जी रहने के बजाय एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में रहने लगेगी। मैं उसी चीज को मैं पिक्टोरिकली ड्रॉ करता हूं। मैं यह सोडियम